Hello students, today we are going to formally begin this chapter, chemical bonding, which is chapter 4 of your class 11th chemistry. Okay. Before we start with this chapter, chemical bonding, we must know what is the meaning of this chapter, what is the literal meaning of this chapter. So, chemical bonding, right? What does a chemical bond refer to? तो आप लोगों ने एटम्स देखे होंगे क्लास 9th में, आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा होगा. So students, in a periodic table we know that there are approximately 118 elements. 118 elements. Okay, out of these 118 elements, only 6 are found to exist freely. Right? What are these 6 which are existing freely? These are noble gases. Noble gases. Right? What are noble gases? Helium, neon, argon, helium, neon, argon, krypton, xenon, and radon. Their respective atomic numbers are 2, 10, 18, 36, 54, and 86. According to Bohr, if we write their electronic configuration, then the electronic configurations are 2, 2,8, 2,8,8. For krypton, it is 2, 8, 18, 8. For xenon, 2, 8, 18, 18, 8. And for radon, 2, 8, 18, 32, 18, 8. Right. If we can notice here, in all these atoms, in all these electronic configurations, there are outermost 8 electrons present. Okay, there are 8 electrons in their outermost shell, except helium. In case of helium, we are having only 2 electrons in their outermost shell. Now, what is to be noticed here? The thing which is to be noticed, that all these gases which are having, all these elements which are having outermost 8 electrons in their electronic configuration, or if that belongs to the first period only, then 2 electrons in their outermost shell, that is in the first shell, then they are electronically and magnetically stable. Right? उनके magnetic fields जो इलेक्ट्रॉन की वजह से जनरेट होते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक फील्ड्स वो आपस में इतना कैंसिल हो जाते हैं कि दिस इज कंसीडर्ड एज मोस्ट स्टेबल स्टेट. आगे जाकर के हम लोग ऑक्टेट रूल करके इसको देखेंगे. राइट? फॉर हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स. अच्छा, तो इन नोबल गैसेस के अलावा, ये तो कहानी हो गई 6 एलिमेंट्स की. राइट? बचे हुए 118 एलिमेंट्स में से रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं? दोस आर नॉट फाउंड इन देयर एटॉमिक फॉर्म्स. वो अपने एटम की फॉर्म में फ्री एग्जिस्टेंस नहीं करते हैं. राइट? तो फिर कैसे पाए जाते हैं? दोस आर फाउंड इन सम सॉर्ट ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्म्स. राइट? कुछ दूसरे एटम्स के साथ एसोसिएट होकर के मॉलिक्यूल्स बना करके रखते हैं. फॉर एग्जांपल, वी कैन हैव वाटर, H2O. I think this color is not very much visible in this black screen. Let me go through blue one. Okay. Let's look for the white. So HOH, right? HOH. Helium, neon, यहाँ पर जो water है HOH, 2 atoms of hydrogen which are having just 1 electron in their outermost shell are combined with oxygen which is having 1, 2, 3, 4, 5 and 6 electrons in its outermost shell.
राइट। तो ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में, हाइड्रोजन इज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन ईच, वी नो वेरी वेल। यहां पर क्या हो रहा है, शेयरिंग हो जा रही है, शेयरिंग हो जा रही है, ओके। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ शेयरिंग जो बॉन्ड बनते हैं दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा खैर, कोवेलेंट बॉन्ड या टाइप ऑफ बॉन्ड पे तो हम बाद में आएंगे। पहले हम यहाँ पर अगर नोटिस कर पा रहे हो तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में आपस में इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग क्यों हुई, उससे शेयरिंग के बाद क्या बन रहा है, उसके बाद की जो सिचुएशन है आफ्टर बॉन्डिंग जो सिचुएशन है, इफ यू कैन नोटिस नाउ ऑक्सीजन इज हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल, 2 6 उसके और एक उसमें शेयर कर रखा हुआ है, राइट। उसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इन केस ऑफ हाइड्रोजन अगर हम देखें तो उसका भी डुप्लेट कंप्लीट है, उसका भी डुप्लेट कंप्लीट है, यू नो शेयरिंग इज केयरिंग। तो दोनों एक दूसरे को शेयर करके इलेक्ट्रॉन्स सिंपल तरीके से अपना अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट कर रहे हैं, ऑलराइट। एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल we are having 2 atoms, one is sodium and another is chlorine. Atomic number for sodium is 11, electronic configuration 281, right. In the very similar way अगर हम क्लोरीन के लिए देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन इज 287, राइट। अच्छा, अब इनका नियरेस्ट नोबल गैस, सोडियम का नियरेस्ट नोबल गैस कौन है, यस नियॉन, राइट। सो नियॉन with atomic number 10 and electronic configuration 2,8. क्लोरीन का नियरेस्ट नोबल गैस कौन है, आर्गन, एटॉमिक नंबर 18, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288, राइट। अब अगर सोडियम को नियॉन जैसा बनना है देन इट हैज टू रिलीज दिस वन इलेक्ट्रॉन, राइट। ऑन द अदर हैंड क्लोरीन को अगर आर्गन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना है देन इट हैज टू रिसीव वन इलेक्ट्रॉन, क्लियर। अब होगा क्या, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Na+ फॉर्म करेगा। We know very well that atom is electrically neutral because it is having equal positive charge in the form of proton in the atom nucleus and negative charge in the surrounding in the form of electrons. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड में सब साइन डिफरेंट है। तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 1+ उसको शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8, यस नाउ इट इज स्टेबल, राइट। ऑन द अदर हैंड Cl- यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन रिसीव किया, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8,8, ब्रिलियंट, ये भी स्टेबल, राइट। अब क्या होना है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस तो इनके स्टेबलाइज हो गए हैं, बट एट द सेम टाइम इनके ऊपर चार्ज आ जाने की वजह से अनस्टेबिलिटी आ गई है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, ये नेचुरल फोर्सेस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक फंडामेंटल फोर्स है, ओके। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में काम करेगा एंड दे विल फॉर्म NaCl, राइट। अब यहाँ पर हमने दो तरीके से, मतलब दो एग्जांपल्स हमने देखे और दोनों एग्जांपल्स में हम लोगों ने नोटिस किया कि एक हमारे पास वाटर था HO and H, राइट, जिसमें 3 एटम्स, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का आपस में इस तरीके से कंबाइन हो रहे हैं कि उन्होंने अपने अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रखे हैं। एट द सेम टाइम अगर हम देखें दूसरा तरीका सोडियम और क्लोरीन के पास था, इनके द्वारा जो तरीका अपनाया गया है वो उधर बिल्कुल डिफरेंट है, राइट। हालांकि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बॉन्ड बना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉन लेने से या इलेक्ट्रॉन देने से, राइट, इस तरीके के बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। व्हाई, अगर हम इस तरफ चले हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, सच बॉन्ड्स आर कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो ओवरऑल अब हमें केमिकल बॉन्ड का डेफिनेशन समझ लेना चाहिए। व्हाट इज द केमिकल बॉन्ड? अभी मैं आपको आयनिक या कोवेलेंट नहीं पढ़ा रहा हूँ, जब उनकी डिटेल में जाएंगे तो बहुत डिटेल में जाएंगे, दिस इज जस्ट टू गिव यू अ सुपरफिशियल व्यू ऑफ दिस चैप्टर, ओके। केमिकल बॉन्ड okay, chemical bond, I'm sorry for this, yes,
the force of attraction which holds together the different atoms in a molecule. किसी भी एक मॉलिक्यूल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है डिफरेंट एटम्स के बीच में, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड, राइट? तो वो हाइड्रोजन और वाटर में H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, या फिर सोडियम और क्लोराइड में, सोडियम क्लोराइड में Na और Cl के बीच में, एटम्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। ठीक, so now let me bring you back to the NCERT. Yes. Here, chemical bonding and molecular structure chapter में पहली चीज तो ये आ गई, the attractive force which holds the various constituents, that is atoms or ions, etc., together in different chemical species is called a chemical bond. Okay, it is this chemical bond which we are going to study in great detail in this chapter. Okay, now the question arises, why do atoms combine? तो इसका आंसर मैंने अभी आपको दिया, all atoms want stable noble gas configuration. इसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना या शेयर करना करते हैं, right? In order to achieve nearest noble gas configurations, atoms of different molecule of different elements undergo electrons transfer, means loss or gain or sharing, right? So this gives rise to the formation of different type of bonds. Second is, first question is here. Second, why are the only certain combinations possible? Yes, why are the certain combinations possible? इस क्वेश्चन से क्या पूछना चाह रहे हैं? Let me show you. For example, हम यहाँ पर NaCl भी क्यों बना सकते हैं? हम NaCl2 क्यों नहीं बना सकते? हम Na2Cl क्यों नहीं बना सकते? और whatever different n number of possibilities are there, तो कोई भी normal possibility क्यों नहीं लग रही है? यहाँ पर हमने क्यों फिक्स कर दिया कि one sodium will associate with only one chlorine, right? The reason behind is कि इसको एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करना है, इसको एक ही इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है, not possible कि वो दो फ्लोरीन एटम्स के साथ एक सोडियम एसोसिएट कर जाए, while at the same time अगर हमारे पास मैग्नीशियम हो जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्लोरीन को स्टेबलाइज करने के लिए 287, इसको तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन को रिलीज कर देगा और दूसरा क्लोरीन को भी ये जो 287 है 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है। इस तरीके से ये MgCl2 फॉर्म कर देगा। Now once again a unique combination MgCl2 1 magnesium with 2 chlorine is possible. अगर आप सोचें कि Mg2Cl क्यों नहीं पॉसिबल है, right? So only certain possibilities are possible, only certain combinations are possible जिनका परमिशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की थ्योरी से या ऑक्टेट रूल से निकल करके आता है, राइट? ऐसा कोई भी आर्बिट्रेरली आप कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं ले सकते हैं किसी भी केमिकल कंपाउंड को बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट थिंग, why certain combinations are possible? Why do some atoms combine while certain others do not? Yes, ये बात मैंने पहले ही कह दी थी कि इनका क्वेश्चन है कि क्यों कुछ एटम्स कंबाइन करते हैं जबकि कुछ दूसरे नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन,
The reason behind is already explained to you, right? What was the reason behind? That these helium, neon, argon, krypton, xenon, radon are already having their stable electronic configuration, and if their electronic configurations are already stable, then what is the use of their chemical combination, and why do we these elements will undergo chemical combinations? हालांकि स्टूडेंट्स जैसे जैसे आप अपना स्टडी बढ़ाएंगे, मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एक्सेप्शंस. ओके, तो आपने सुना होगा ये सही कई सारे लोगों से. आगे जाकर के हम देखेंगे कि ज़ेनॉन टाइप के नोबल गैसेस भी कुछ सर्टेन कंडीशंस में, कुछ विगरस कंडीशंस में कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं, मगर उनके लिए अलग एक्सप्लेनेशन है, अलग चैप्टर्स हैं, राइट? मगर आपको ये माइंडसेट रखना चाहिए और उसके एक्सप्लेनेशन दिए जाएंगे. मगर आप भी आप यह समझें कि आम कंडीशंस में, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, these elements do not undergo any sort of chemical combination, right? Reason is their stable electronic configuration. Now, to answer such questions, different theories and concepts have been proposed, जिसमें हम लोग देखेंगे causal Lewis approach. First thing, causal Lewis approach. Second, valence shell electron pair repulsion theory. Second, next is BBT, valence bond theory, and next is molecular orbital theory. इन सारी theories और interpretation, इनके evolution, इनके drawbacks, ये सारी चीजें हम लोग देखते हुए इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे. All right. So now, causal Lewis approach to chemical bonding. कोई बहुत बड़ा नया इनका अप्रोच नहीं है. Lewis postulated that atoms achieve the stable देखिए ये causal Lewis approach शुरू होता है, मैं इसको थोड़ा zoom out कर दिया. Causal Lewis approach for chemical bonding. Different chemical bonds के formation को explain करने के लिए in terms of electron, a number of attempts were made, but it was only in 1916 that Causal and Lewis succeeded independently in giving a satisfactory explanation. They were the first to provide some logical explanation to the valency, which was based on the inertness of noble gases. अभी जो मैंने आपको noble gases वाली बात बताई थी, वैलेंसी टर्म आपको क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए. नोट कर लीजिए, the combining capacity of any element, the combining capacity of valency, the combining capacity of atom of an element is termed as its valency. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं it is equal to the number of electrons lost, gained or shared by an atom of an element. Okay, what is valency? It is equal to the number of electrons lost, gained or shared by an atom of an element. Okay, this is valency. अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस या गेन हुआ है, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हम उसे नेम दे देंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी. और अगर शेयरिंग हुआ है then it is कोवैलेंसी. ये बातें आप लोग ध्यान रखें, ठीक है? चलिए मैं वापस आता हूं.
So here, what does Lewis observe? Lewis postulated that atoms achieve stable octet. देखिए octet rule यहीं से निकल के आ रहा है. Lewis postulated that atoms achieve stable octet when they are linked by chemical bonds. जब भी atoms chemical bond form करते हैं तो वो अपनी octet complete कर रहे होते हैं. ओके, हालांकि अभी हम ऑक्टेट रूल के भी एक्सेप्शन देखेंगे, मगर मोस्ट ऑफ द केसेस में आप ये चीज देखेंगे कि ऑक्टेट कंप्लीट हो रही है. इन केस ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन, जस्ट नाउ आई हैव डिस्कस्ड दिस एग्जांपल विद यू. What happened by the transfer of electron sodium to chlorine, thereby giving the Na plus and Cl minus ions. Okay. In the case of other molecules, this is Cl2, H2, F2. इनमें क्या हो रहा है? In these elements, ये आपस में ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे होते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल मैं आपको Cl2 दिखा दूं. क्लोरीन आउटर मोस्ट 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7. अनदर क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7. इन दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए एंड इस तरीके से Cl2 मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड. ओके, H2 हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, another hydrogen 1 electron, H2 formation, right? F2 was the example over there. outermost में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन में भी हैलोजन है. another fluorine 1 2 3 4 5 6 7 sharing, right? और इस तरीके से formation of F2 is taking place. So, like H2, Cl2, F2, etc., the bond is formed by the sharing of a pair of electrons, right? So, stable octet, stable outer octet, ये जो है, अगर outer most में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी एटम के, तो वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है. प्लीज हाईलाइट दीज टर्म्स. ओके, अगर किसी भी एटम में, एलिमेंट में, किसी भी एलिमेंट के किसी एटम में आउटर मोस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जा रहे हैं, तो स्टेबिलिटी आ गई. 8 नहीं है तो वो केमिकल रिएक्शन करेगा, केमिकल बॉन्ड बनाएगा इन ऑर्डर टू गेट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. लुईस सिंबल्स, लुईस सिंबल क्या होते हैं? किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में उसकी आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं बेटा, उनको आप बना दीजिए उसके सिंबल के साथ. दैट इज कॉल्ड लुईस सिंबल. बैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, उनको आप डॉट के फॉर्म में रख दीजिए. For example, here are the Lewis symbols for some elements. Lithium, 1 electron is there present in their outermost shell. Barium 2, boron 3, carbon 4, nitrogen 5, oxygen 6, fluorine 7 and neon 8. In this way, dot के फॉर्म में आप रख दीजिए. That is it. Significance of Lewis symbol क्या है? तो इससे भाई नंबर ऑफ डॉट्स जो है वो रिप्रेजेंट कर देते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वहां पर. अच्छा, ये लुईस के ऑब्जर्वेशन थे. इससे हमें ग्रुप की वैलेंसी पता चल जाती है कि उस पर्टिकुलर ग्रुप में वैलेंसी क्या है. फॉर एग्जांपल, आप ग्रुप 1 की बात करें, आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ चुके हैं, राइट? सो व्हाट आर द ग्रुप्स ओवर देयर? ग्रुप 1 में क्या क्या है? For example, in group 1, hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. These are the elements, right? With the atomic numbers 1, 3, 11, 19, 37, 55 and 87. Electronic configurations. 1, 2,1, 281, 2881, 2818, 81, 2818,
18, 8, 1, 2, 8, 18, 32, 18, 8, 1. Okay. In all these, only outermost one electron is present. मतलब एक ग्रुप में, यही तो हमारा ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जब हमने ग्रुप्स पढ़े हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल एलिमेंट्स पढ़ा है पिछले चैप्टर में, चैप्टर 3 में, तो वहां पर हम लोगों ने यही तो सीखा है कि एक ग्रुप के सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिमिलर होता है. व्हाट डू मीन बाय सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन? कि इनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सिमिलर है, सेम. ओके, तो बात क्लियर हो रही है. अब अगर आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएं तो हाइड्रोजन के लिए भी ऐसे ही बनेगा, लिथियम का भी वैसे ही बनेगा, सोडियम सिमिलर, पोटेशियम सिमिलर, रुबिडियम सिमिलर, सीजियम सिमिलर एंड फ्रांजियम सिमिलर. ओनली वन डॉट विल बी प्लेस्ड विद देम, राइट, क्योंकि उनमें एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, चलो वापस आ जाओ. ठीक है. Now, causal in relation to the chemical bonding drew attention to the following facts. Causal का क्या approach था? Points देख लेते हैं जरा. In the periodic table, the highly electronegative halogens and the highly electropositive alkali metals are separated by noble gases. पहला thing. Second, the formation of a negative ion from a halogen atom and a positive ion from an alkali metal atom is associated with the gain or loss of electron. अभी मैंने आपको सोडियम और क्लोरीन में करके दिखाया है बेटा. आई होप आप लोग अल्कली मेटल एंड हैलोजन समझ रहे हैं. नहीं समझ रहे तो मैं बता दूं. अभी जो मैंने ग्रुप बनाया था हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, जस्ट पिछले पेज में, ओके, वो सारे अल्कली मेटल्स हैं और हैलोजन में हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट, ये सारे हैलाइड्स आ जाते हैं. ऑलराइट, तो इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन होकर के इनमें बॉन्डिंग होती है. The negative and positive ions thus form, जो नेगेटिव या पॉजिटिव आयंस यहां पर बन रहे हैं, thus formed attain stable noble gas electronic configuration. The noble gas, with the exception of helium, which has a duplet of electrons, बाकी सबका octet complete है. All are having 8 electrons, that is ns2 np6. अगर आप ऑफबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, अगर ये आउटरमोस्ट शेल nth शेल है तो their electronic configuration will be ns2 np6. Okay, now let's move forward. The negative and positive ions are stabilized by electrostatic force of attraction. सोडियम का एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, आप देख सकते हैं. इसी तरीके से कैल्शियम और फ्लोरीन, कैल्शियम फ्लोराइड बना हुआ CF2. The bond formed as a result of electrostatic force of attraction, उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, राइट. वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में बनता है. यस, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. इसके बाद स्टूडेंट्स ऑक्टेट रूल, हालांकि मोस्ट ऑफ मोर और लेस क्लियर हो गया, बट ऑक्टेट रूल एंड कोवैलेंट बॉन्डिंग के बारे में मैं आपको लाइट तरीके से डिस्कस कर चुका हूं, केमिकल बॉन्डिंग. बट अगेन थ्रू एनसीईआरटी वी विल डिकोड वर्ड बाय वर्ड, राइट. एनसीईआरटी डिकोडिंग हम लोग एक एक शब्द की करेंगे, जिससे किसी भी टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना आने पाए. Let it be objective questions, let it be assertion और reason type questions. तो आगे कंटिन्यू करने के लिए पढ़ते रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, stay safe, stay healthy and keep studying. Thank you.